بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف زبردست احتجاج، امریکہ نے $700 ملین کی مدد روک دی۔ ایجپٹ میں صدر سیسی نے 4 سال بعد ایمرجنسی برخاست کر دی۔ نائجیریا کی مسجد میں بندوق برداروں کا حملہ، فجر کے دوران 16 نمازی جاں بحق۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی چہارشنبے کو تہران میں میٹنگ، کابل میں عورتوں کا احتجاج۔ اسرائیل کی بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، UAE کے ایئر فورس چیف نے بھی حصہ لیا۔ یہودی بستیوں کو راکٹ حملوں سے بچانے کا منصوبہ، 2.5 کروڑ شیکلز منظور۔ پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف UAPA کے تحت کیس درج۔ پیگاسس معاملے میں سپریم کورٹ چہارشنبے کو فیصلہ سنائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوڈان کی۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف زبردست احتجاج ہو رہا ہے، سڑکیں اور دکانیں بند ہیں، فونز ڈاؤن ہیں، مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ خرطوم اور قریبی شہر میں تمام سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں، لیکن ایک دن پہلے کے مقابلے میں صورتحال پرامن یا پیسفل رہی۔ ایک دن پہلے فوج نے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو اور دوسرے سیاسی لیڈرز کو گرفتار کر لیا تھا اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی۔ احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 7 لوگ مارے گئے ہیں۔ فوجی بغاوت کے لیڈر جنرل عبدالفتاح البرہان نے وعدہ کیا ہے کہ ملک میں الیکشنز کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے بغاوت ضروری تھی۔ انہوں نے جولائی 2023 میں الیکشنز کرانے اور حکومت سیویلینز کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ سوڈان کے فوجی ڈکٹیٹر نے کہا کہ ملک میں ایکسپرٹس کی حکومت بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاملات کو الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکنوکریٹس مل کر چلائیں گے۔ خرطوم کی سڑکوں پر جگہ جگہ بیریکیڈز لگی ہیں، کئی لوگوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے اور رکاوٹوں کو توڑ دیا۔ اس دوران فوجی جنرلز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال پر غور کیا گیا۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے اور سیاسی لیڈرز کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور دوسرے وزیر کہاں ہیں۔ رشیا نے صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ سوڈان کو اپنے طور پر مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایسا ہوگا اور انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔
अमेरिका ने फौजी बगावत की मजम्मत करते हुए मुल्क के लिए $700 मिलियन की मदद रोक दी है। अमेरिकी हुकूमत ने बगावत को नाकाबिल कबूल करार दिया है और कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। अमेरिका के एक बयान में कहा गया कि इन कार्रवाइयों से जमहूरियत की तरफ सूडान का रास्ता पटरी से उतर सकता है और इससे सूडान के पुरअमन इनकलाब से दगा होगी। सऊदी अरब ने कहा है कि वो सूडान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सऊदी अरब ने सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए तनाव दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने 2017 में लगाई गई इमरजेंसी बर्खास्त कर दी है। इस इमरजेंसी के तहत किसी को भी वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता था। अप्रैल 2017 में 2 चर्चों पर हमलों के बाद यह इमरजेंसी लगाई गई थी। इन हमलों में 40 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। इन हमलों के लिए आईसिस को जिम्मेदार करार दिया गया था। सीसी ने फेसबुक पर लिखा कि इजिप्ट खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी का मरकज बन गया है, जिसकी वजह अवाम है, इसीलिए इमरजेंसी बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। इजिप्ट के इंसानी हुकूक कारकुनों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। ईरान ने अफगानिस्तान के बारे में तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस से पहले उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क में एक जामे हुकूमत बनेगी। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने बताया कि 4 शंबे को अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में रशिया भी हिस्सा लेगा। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी खिताब करेंगे और यूएन चीफ एक पैगाम रवाना करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि तेहरान मीटिंग का मकसद अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तालमेल पैदा करना और मुल्क में अमन कायम करना है। काबुल में बाज़ अफगान औरतों ने एहतजाज किया। ये औरतें बैनर्स उठाए हुए थीं जिन पर यह सवाल लिखा था कि दुनिया खामोश क्यों है। कोई 1 दर्जन औरतों ने इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। हालांकि तालिबान ने इस तरह के मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी है। इन औरतों ने तालीम और काम करने का हक मांगा। एहतजाजियों में शामिल वहीदा अमीरी ने कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल से हमारा मुतालबा है कि हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएं। आज हमें हर चीज़ से महरूम किया जा रहा है। सऊदी मीडिया में कहा गया कि यमन के हूसियों ने मारीब में दर्जनों सिविलियंस का अगवा कर लिया है। हूसी मारीब में एक फौजी ऑपरेशन कर रहे हैं और शहर पर कंट्रोल के लिए जबरदस्त लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब इल्जाम लगाता रहा है कि हूसियों को ईरान की मदद हासिल है। नाइजीरिया में एक मस्जिद पर बंदूक बरदारों के हमले में 16 नमाजी हलाक हो गए। बताया गया कि मोटरसाइकिलों पर सवार कई बंदूक बरदारों ने नाइजर रियासत के एक गांव पर हल्ला बोला और फजर की नमाज के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ओहदेदारों ने बताया कि डाकुओं ने मस्जिद के अंदर 16 लोगों को हालत नमाज में गोली मारी। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। एक शख्स करीबी गाँव में मारा गया जहाँ से बंदूक बरदार फरार हुए। ओहदेदारों ने बताया कि हम हमले का मकसद मालूम करने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। आमतौर पर लुटेरे जानवरों को लूटने के लिए और लोगों का पैसे के लिए अगवा करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बहरीन में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। एक साबिक कैदी की मौत के बाद यह मुजाहरा शुरू हुआ। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद अल विफाक ने मनामा के करीब इस मुजाहरे का एहतमाम किया। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक तंजीम ने फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर करने और अपने अमीर साद रिजवी को रिहा करने के लिए हुकूमत से बातचीत की, लेकिन कहा कि बातचीत का ये दौर भी नाकाम रहा। हाल ही में इस मसले पर लाहौर में झड़पें हुई थीं जिनमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए थे। मरने वालों में पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसराइल की हुकूमत ने फ़लस्तीनी रॉकेटों से यहूदी बस्तियों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहूदी कॉलोनियों को रॉकेट प्रूफ बनाया जाएगा। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसके लिए 2 करोड़ 50 लाख शेकल्स मंजूर किए गए हैं। खासतौर पर गाजा के करीब यहूदी कॉलोनियों को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया है। इसराइली पार्लियामेंट के नेसेट के चेयरमैन ने कहा कि गाजा के करीब रहने वाले हज़ारों यहूदी आबादकारों की जिंदगियों को खतरा है और वो किसी भी वक्त हमले का शिकार बन सकते हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुल्लाह से बातचीत करते हुए मिडल ईस्ट की सूरत हाल, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन मसले के बारे में बात की। उन्होंने फ़लस्तीन कॉज़ की तायीद के लिए मलेशिया का शुक्रिया अदा किया।
इसराइल ने अपने इत्तेहादियों के साथ बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू की हैं। इन मशक़ों में यूएई के एयरफोर्स चीफ ने भी हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज के अहदेदारों ने बताया कि इन मशक़ों में ईरान पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन फ़ौजी अहदेदारों का कहना है कि ईरान अब भी इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। 2013 में नेगेव रेगिस्तान में होने वाली फ़ौजी मशक़ों के बाद ये सबसे बड़ी मशक़ें हैं। इन मशक़ों में 70 जंगी हवाई जहाज़ और 1500 सिपाही हिस्सा ले रहे हैं। यूएई का कोई भी जंगी जहाज़ मशक़ों में शामिल नहीं है, लेकिन यूएई के एयरफोर्स चीफ ने इन मशक़ों में हिस्सा लिया। इन मशक़ों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के सिपाही भी शरीक है। एक दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले मुल्कों की मजम्मत करते हुए कहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ईरान के गैस स्टेशंस पर साइबर हमले की खबर है। इससे फ्यूल की सप्लाई मुतासर होगी। सरकारी टेलीविजन पर यह बात बताई गई, लेकिन इस सिलसिले में ज़्यादा तफसीलात नहीं है। वजारत पेट्रोलियम के अहदेदारों ने इस टेक्निकल मसले को हल करने के लिए हंगामी मीटिंग की। इसना न्यूज़ एजेंसी ने इसे साइबर अटैक करार दिया और कहा कि इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जो सरकारी कार्ड के ज़रिए फ्यूल ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। कई ईरानी अपनी गाड़ियों के लिए सब्सिडी पर तेल हासिल करते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीरिया में अमरीकी फौजी अड्डे पर हालिया हमले में ईरान शामिल है। यह हमला कुछ दिन पहले किया गया था। इसके लिए इराक से काम करने वाली शिया तंजीमों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी का जश्न मनाने वाले कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ यूएपीए के तहत 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। बाज़ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के हॉस्टल्स में लड़कियां पाकिस्तान के हक में नारे लगा रही हैं और पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन ने कहा कि इन स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि 2 पुलिस स्टेशंस में एफआईआर दर्ज की गई है। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे मकामात पर उस वक्त पटाखे भी छोड़े गए थे जब वज़ीर दाखिला अमित शाह दौरा कर रहे थे। अमित शाह ने कश्मीर का 3 दिन का दौरा किया। ये आर्टिकल 370 बर्खास्त किए जाने के बाद कश्मीर में उनका पहला दौरा था। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अहदेदारों ने बताया है कि उन्होंने ये बात मालूम करने के लिए एक कमेटी बनाई है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियोस किस तरह सामने आए। ये कमेटी 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। एक अहदेदार ने बताया कि इस बात के कोई इशारे नहीं है कि ये जश्न इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ, लेकिन हम तहकीकात कर रहे हैं। सोर्सेस ने बताया कि पुलिस मालूम कर रही है कि वीडियो क्या असली है। अमित शाह ने इस दौरे के दौरान कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, बल्कि कश्मीरियों के साथ बातचीत होगी। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद पंजाब में भी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के दरमियान झड़पें हुई थीं। ये झड़पें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई जो कश्मीरी स्टूडेंट्स और यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के दरमियान हुई। इस दौरान बताया गया कि कश्मीर में दर्ज एफआईआर में किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स के हवाले से पंजाब में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से कहा गया कि वो अपने रूम्स में मैच देख रहे थे जब लाठियों से लैस लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की आज़ादाना तहकीकात के लिए 4 शंबे को अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने 13 सितंबर को अपना फैसला महफूज किया था और कहा था कि वो जानना चाहती हैं कि क्या मरकज़ी हुकूमत ने शहरियों की जासूसी के लिए गैर कानूनी तरीके से पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया। मरकज़ी हुकूमत ने कौमी सलामती का बहाना करते हुए इस मामले में तफसीली हलफनामा दाखिल करने से इनकार किया था। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सरकारी एजेंसियों ने इसराइल के स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए कई अहम सियासतदानों, शहरियों और जर्नलिस्टों की जासूसी की है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 29 नवंबर से 23 दिसंबर के दरमियान हो सकता है। इससे पहले मॉनसून सेशन पेगासस मसले और किसान कानून के मसले पर हंगामों की नज़र हो गया था। पिछले साल कोविड-19 वबा की वजह से सरमाई सेशन नहीं रखा गया था। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इस सेशन के सिलसिले में शेड्यूल तय कर दिया है। इससे पहले मॉनसून सेशन वक्त से 2 दिन पहले ख़त्म किया गया था। बात कोविड की। WHO के एक अहदेदार ने कहा है कि कोवैक्सीन को 24 घंटों के अंदर किसी भी वक्त मंजूरी दी जा सकती है। WHO की एक टेक्निकल कमेटी इस सिलसिले में मंजूरी देने वाली है। आलमी इदारे की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,428 नए कोविड केसेस पाए गए। ये तकरीबन 8 महीनों के सबसे कम डेली कोविड केसेस हैं। इस दौरान हुकूमत ने त्योहारों के मौसम से पहले आवाम से कहा कि वो चौकस रहें। एक्टिव केसेस में भी कमी आई है।
241 دنوں کی سب سے نچلی سطح پر ایکٹیو کیسز پہنچ گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک تقریباً 103 کروڑ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیے۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف زبردست احتجاج، امریکہ نے $700 ملین کی مدد روک دی۔ ایجپٹ میں صدر سیسی نے 4 سال بعد ایمرجنسی برخاست کر دی۔ نائجیریا کی مسجد میں بندوق برداروں کا حملہ، فجر کے دوران 16 نمازی جاں بحق۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی چہارشنبے کو تہران میں میٹنگ، کابل میں عورتوں کا احتجاج۔ اسرائیل کی بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں، UAE کے ایئر فورس چیف نے بھی حصہ لیا۔ یہودی بستیوں کو راکٹ حملوں سے بچانے کا منصوبہ، 2.5 کروڑ شیکلز منظور۔ پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف UAPA کے تحت کیس درج۔ پیگاسس معاملے میں سپریم کورٹ چہارشنبے کو فیصلہ سنائے گی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔